Okay, let's look at what we discussed yesterday. So we defined group homomorphism. So it's a mapping or a function between two groups, and it is said to be a homomorphism if it preserves the group operation. And then we discussed कि group operation को preserve करने का क्या मतलब है, that phi of AB is phi A into phi B. So obviously A और B में जो operation होगा वो group G का होगा, और phi A और phi B में जो operation होगा वो group G बार का होगा. ये दोनों ग्रुप्स के ऑपरेशंस सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, right? So this is how we write it and denote it. And then we had monomorphism. So homomorphism होने के साथ साथ अगर 1-1 भी है आपका मैप, so this is called monomorphism. 1-1 भी है और on2 भी है और homomorphism भी है, so this is called isomorphism. And in that case the groups are said to be isomorphic to each other. और isomorphism के मैंने आपको benefits भी बताए थे कि जब भी दो groups आपस में isomorphic हैं, so it is equivalent or it is sufficient to just analyze or study one of the groups, other ones properties will be similar. So we were doing examples. So the very first example was integers, reals under addition and the positive reals under multiplication. So we defined the mapping like this and proved that this is satisfying all the properties of being a isomorphism. So it's homo, 1-1 and on2. So this was one example we did. Now we will do few more examples for isomorphism and homomorphism. Okay, so let's discuss example number 2. So this is saying that every infinite cyclic group is isomorphic to the group of integers. So you can treat it as an example or you can treat it as a result, and it is a very fundamental important result which says that every infinite cyclic group is isomorphic to the group of integers. So we already know group of integers. Obviously under addition we know that it forms a group under addition. So we already know that this is a cyclic group. हमें इसके generators भी पता है, -1 and 1. So it has two generators, -1 and 1, right? So these are the generators. So this is something we already know. अब हमें प्रूव करना है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जो इनफाइनाइट है तो वो इसके आइसोमॉर्फिक होगा. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. सो लेट G be an infinite cyclic group, right? So हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी है फ्रॉम G to Z. वो मैपिंग ऐसी डिफाइन करनी है जो आइसोमॉर्फिज्म हो. सो लेट्स थिंक अबाउट. अब आपको वो थिंकिंग डेवलप करनी है कि मैंने आपको कल बताया था कि 2-3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. एक तो होता है कि मैप गिवन है, आपको सिर्फ चेक करना है कि वो आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. और एक इस तरह के रिजल्ट्स होते हैं कि प्रूव करो ये वाला ग्रुप इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है. तो इन दैट केस दे हैव टोल्ड यू देयर इज आइसोमॉर्फिज्म, आपको मैप कंस्ट्रक्ट करना है. और थर्ड कैटेगरी होती है क्वेश्चन, इज दिस आइसोमॉर्फिक टू दैट. सो उसमें आपको और ज्यादा सोचना पड़ता है कि अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो वो मैप कंस्ट्रक्ट करो, नहीं तो डिस्प्रूव करो. तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन है कि ये आइसोमॉर्फिक होगा, बट हमें मैप कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, सो डिफाइन फाई फ्रॉम G to Z. अब G के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? G के बारे में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है कि एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है. सो उसका कोई ना कोई जनरेटर तो होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का मतलब ये है कि उसका कोई जनरेटर होगा. सो लेट A बी द जनरेटर ऑफ G. तो इन दैट केस G के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? अब मुझे मैप डिफाइन करना है फाई फ्रॉम दिस टू समथिंग. एक इंटीजर पे मुझे उसको मैप करना है. बट बिफोर दैट यू नीड टू टेल मी हाउ डू द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप G लुक्स लाइक. So
sorry, again. How does the element of this look like? Class. एक मिनट, सॉरी, उपी पांडे सर इस तरफ जाके लेफ्ट कॉरिडोर में जाएंगे ना, उधर होगा उनका रूम, अब चेक कर लीजिए. हेलो, या हाउ डू द एलिमेंट्स ऑफ जी लुक्स लाइक? सो इट विल बी a की पावर k. एक्चुअली वही है कि g के ऑपरेशन पे डिपेंड करता है. अगर तो g अंडर एडिशन है तो इट विल बी सम इंटीजर into k, क्योंकि जनरेटर का मतलब है एवरी एलिमेंट विल बी लाइक a plus a plus a plus a, so it will be an integral multiple of a, right? और अगर आपका g अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो it will be power, because it will be a into a into a into a, so a raised to power k, right? अब आपको देखो, अगर बहुत ज्यादा डिटेल्ड प्रूफ करना है तो आप दोनों को वन बाय वन ले सकते हो कि फर्स्टली कंसीडर द ऑपरेशन अंडर एडिशन एंड देन कंसीडर द ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन and then you prove it. Otherwise एक ही sufficient है, because if you see जितने भी हमने साइक्लिक ग्रुप्स वाले चैप्टर में या कहीं भी रिजल्ट्स करे हैं, हम बाय डिफॉल्ट इसके लिए प्रूव करते हैं. ओके और फिर इसके लिए वो अपने आप इंप्लाई हो जाता है कि सिमिलर लाइंस पे हम कर सकते हैं. सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली कि आप दोनों के लिए करो, आप किसी भी एक के लिए कर दीजिए. और बाय डिफॉल्ट हर रिजल्ट हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए लेके चलते हैं. सो आई विल बी टेकिंग दिस वन. इज इट क्लियर नाउ? Is it clear to everybody this point? Yes, sir. Right, so this is how the element of G is going to look like. So can anybody suggest something? What should I map it to? मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? अब मेरी मर्जी है, मुझे मैप डिफाइन करना है, वो इंटीजर होना चाहिए बस. So what should I write? ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट मैप नहीं डिफाइन कर रहे हैं. इट शुड बी सम वेरिएबल, इट शुड बी सम इंटीजर. आपको a रेज टू पावर k में क्या इंफॉर्मेशन है? a तो कुछ भी होगा ना, ग्रुप का एलिमेंट होगा, बट आई नो k इज एन इंटीजर बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज एन इंटीग्रल पावर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप. ये a रेज टू पावर k होता है और ये k बिलोंग्स टू z होता है, क्योंकि a स्क्वायर a क्यूब भी होते हैं और ऑब्वियसली उनके इनवर्सेस भी होते हैं. सो नेगेटिव पावर्स भी होती हैं. वन आइडेंटिटी तो होता ही है. सो दिस इज हाउ एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लुक्स लाइक. सो ये डिफॉल्ट नेचुरली क्या होगा? k, क्योंकि a रेज टू पावर k में k ही है जो इंटीजर है. तो दिस इज द सजेस्टेबल वे, दिस इज द वे जैसे हम ये मैप डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ आई डिफाइन द मैप एंड नाउ आई विल प्रूव दैट phi is isomorphism. So पहले हम प्रूव करेंगे phi is homomorphism. तो homomorphism is easy. So phi दो एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? a तो a ही रहेगा, जनरेटर तो a ही रहेगा. पावर्स देख लीजिए, k1 k2 दो अलग अलग पावर्स होंगे. Yeah, so actually it is phi of a k1 plus k2. So according to the definition of phi, पावर पे मैप हो रहा है. So k1 plus k2, and what is k1? It is image of this, and what is k2? It is image of this. Integers के बारे में कोई डाउट नहीं है. Integers is definitely under addition. उस तरफ ऑपरेशन एडिशन ही है. But for G you had the choice कि आपको under addition लेना है कि under multiplication लेना है. So I am taking this one. Is this okay? First step, homomorphism. And then you have to prove phi is 1 1. तो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं? सो हम इमेज से स्टार्ट करते हैं. सो सपोज phi k1, sorry, phi of a raised to power k1 is same as phi of a raised to power k2. So it implies k1 is same as k2. And it implies a raised to power k1 is same as a raised to power k2. This is how you prove 1 1, right? You start fx1 is fx2, वहां से इम्प्लाई होना चाहिए x1 is x2. तो ये मेरा x1 जो है वो है a raised to power k1 और x2 जो है a raised to power k2. ये phi की डेफिनेशन है और ये ऑब्वियस है. अगर k1 और k2 सेम है तो a की पावर k1 will be same as a raised to power k2. So this implies phi is 1 1. And then the third property you have to prove onto.
सो ऑन टू के लिए वो आपको लिखना पड़ेगा. सो इट्स वेरी इजी टू सी कि ये ऑन टू होगा, क्योंकि आप a रेज टू पावर k को k पे मैप कर रहे हो और k इज एनी इंटीजर. तो हमें पता है फॉर एवरी इंटीजर यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ एलिमेंट, क्योंकि आपके साइक्लिक ग्रुप में जो डेफिनेशन है एज आई टोल्ड यू उसमें सारे इंटीग्रल पावर्स प्रेजेंट होती हैं. तो कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी इंटीजर देयर विल एग्जिस्ट एन एलिमेंट लाइक दिस. तो बिकॉज वही उसकी डेफिनेशन. So for every k belongs to z, there exists a raised to power k belongs to g such that phi of a raised to power k is k. Hence onto. बस तो प्रूव हो गया तीनों प्रॉपर्टीज. Therefore phi is isomorphism. It implies g is isomorphic to z. So this is a very strong result which we have just proved. Every infinite cyclic group. अब infinite cyclic group, अब कितने cyclic groups हो सकते हैं जो infinite हो? कितने भी हो हमें नहीं पता, हमने जनरल प्रूव किया. They can be finitely many, they can be infinitely many. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं. इनफैक्ट ऐसे infinitely many ग्रुप्स हैं. I can tell you examples. आप किसी भी रियल नंबर से स्टार्ट हो जाओ, उसको जनरेटर ले लो, उसके इंटीग्रल पावर्स दे दो, क्योंकि आपको पता है. आप मुझे एक ग्रुप बताओ 2 से जनरेट हो रहा है, एक ग्रुप बताओ पाई से जनरेट हो रहा है, एक ग्रुप बताओ ई से जनरेट हो रहा है. देयर आर इनफिनिटली मेनी रियल नंबर्स. आप कोई भी रियल नंबर उठाओ, उसको जनरेटर चूज कर लो, उसके पावर्स लिख दो, वो एक साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा और वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बनेगा. क्योंकि आइडेंटिटी नहीं बनेगा किसी भी स्टेप पे जाके इनकी किसी की भी पावर्स, राइट. सो ये सारे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स होंगे. तो ऐसे इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं. तो दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट विच इज टेलिंग यू कि ये सारे के सारे इंटीजर्स के ही आइसोमॉर्फिक हैं. सो दैट मीन्स इसको ऐसे भी बोला जाता है अलजेब्रा की लैंग्वेज में आइसोमॉर्फिकली. ओके, लेट मी बी मोर मैथमेटिकल. ये वर्ड कम यूज होता है. Let me say what exactly is used. So the word used is, the alternate statement is, there is exactly one infinite cyclic group up to isomorphism. है तो infinitely many groups, बट वो दे आर ऑल आइसोमॉर्फिक टू जस्ट वन ग्रुप. तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म वर्ड यूज करके हम कहते हैं कि बस एक ही साइक्लिक ग्रुप है जो इनफाइनाइट है, और वो कौन सा है? इंटीजर्स. सो दैट मीन्स अगर आपको साइक्लिक ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज का कुछ भी एनालाइज करना है तो आप इंटीजर्स के ग्रुप को एनालाइज कर लो. सो दैट इज डन. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? So coming up, the next result about finite cyclic group. Previous result was for infinite cyclic group. This is for finite cyclic group. Every finite cyclic group is isomorphic to Zn. Integers modulo n. Let me just rectify the statement. Every finite cyclic group of order n. क्योंकि जब हमने फाइनाइट बोल दिया तो उसका कुछ ऑर्डर होगा, राइट. तो जो भी ऑर्डर है उसी Zn के वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा. मींस अगर आप मुझे 2 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बताते हो, सो इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2. 3 ऑर्डर का 3 एलिमेंट्स वाला कोई साइक्लिक ग्रुप है, इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z3, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ. तो इस प्रूफ से देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट फिर से प्रूव हो जाएगा कि अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो इंटीजर्स के आइसोमॉर्फिक है, अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो इंटीजर्स मॉडुलो n के आइसोमॉर्फिक है, राइट. ओके, सो अब ये सिमिलर लाइंस पे करेंगे. आई विल गो क्विकली थ्रू दिस. सो लेट G बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n. तो यहाँ पे भी G का कोई एलिमेंट होगा, generator होगा. G will be generated by A. Obviously, what is going to be A raised to power n? Identity. And A raised to power k is not equal to identity for, sorry,
जीरो तो आइडेंटिटी होता ही है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ, मैंने ये क्या लिखा है कि ऑर्डर ऑफ ए इज एन, क्योंकि जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वही उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है। तो आई विल डेफिनेटली गेट एन एलिमेंट जिसका ऑर्डर एन है एंड दैट इज अ जनरेटर है। तो मुझे अब आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है इस जी में और इस जेड एन में। या सो व्हाट शुड आई राइट? अब ये बिल्कुल प्रीवियस की तरह है, सो यू क्विकली टेल मी हाउ शुड आई डिफाइन दिस मैप? यस, पूजा, पूजा, कैन यू आंसर दिस? Am I audible? Dipali, can you answer this? It's okay, at least reply. I'm not getting. Ma'am, no idea. Okay, okay. At least reply कर दो, मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी को सुन नहीं रहा. Okay, yeah, no problem. I told you that it is similar to the previous one. उसमें भी generator था, तो यहाँ पे you just need to look at again कि G के elements किस तरह के होंगे. Yes, ये बता सकते हो? अब ये finite cyclic group है of order n. कैसे होंगे इसमें elements? कौन कौन से elements होंगे? E, हाँ, E मतलब 1, ठीक है. E, A square up to A raised to power n minus 1. n minus 1, right? So everybody agrees कि n elements हैं और a raised to power n minus 1 तो होंगे. So that is correct. So that means G के elements किस तरह के हैं? a raised to power m, where what is m? m is this, क्योंकि m strictly less than n है, क्योंकि nth power तो वहां पे आई नहीं है. m is obviously integer. m is obviously integer 0 से लेकर n तक, right? So this is phi of a raised to power m. तो मुझे किस पे मैप करना है इसको? What should be the answer? Zn. Zn में कौन से एलिमेंट्स हैं? 0, 1, 2 अप टू n minus 1. तो ये क्लियर फ्रॉम हियर ओनली. ये a raised to power 1 को हम 1 पे मैप कर देते हैं, a raised to power 2 को 2 पे मैप कर देते हैं, क्योंकि सेम एलिमेंट्स है ना, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तभी आइसोमॉर्फिक होगा. तो जस्ट पावर पे ही मैप कर देंगे, तो ये m हो जाएगा. और इसको मॉड n नहीं भी लिखोगे तो भी ये सही है, क्योंकि m की प्रॉपर्टी हमें पता है कि लेस देन n ही है. तो एक इंटीजर ऑलरेडी लेस देन n है, तो उसको n से डिवाइड करने पे वो सेम ही आएगा. सो दिस इज जस्ट n. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? पूछ लो बेटा अगर कोई डाउट है तो. राइट, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द मैप. तो सिमिलर ही है, बस पीछे वाले ग्रुप में वो इनफाइनाइटली मैनी थे, तो मॉड एन करना नहीं था. वो जो भी इंटीजर आना था अपने इंटीजर पे मैप हो जाना था. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो लेस देन एन ही आएगा. सो अब आपको ये खुद से प्रूव करना है. सो आई एम लीविंग इट टू यू. प्रूव दैट दिस इज आइसोमॉर्फिज्म. सो यू डू इट योरसेल्फ. दैट क्या प्रूव करना है? फाई इज आइसोमॉर्फिज्म. अब ऐसे हमने 2 एग्जांपल्स कर लिए, आपको आना चाहिए और बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा. यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी इन दिस. तो इससे प्रूव हो जाएगा एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू zn. तो अगर कोई पूछे हाउ मेनी साइक्लिक ग्रुप्स आर देयर अप टू आइसोमॉर्फिज्म, तो द आंसर इज yes. If this is the question, how many cyclic groups are there up to isomorphism, what should be the answer? Anybody knows the answer? Raise your hand.
अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने ग्रुप्स है? 2, बस एक Z और एक Zn, तो 2 ही साइक्लिक ग्रुप्स हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। जो फाइनाइट वाला है, फाइनाइट वाला मतलब ऑब्वियसली एक नहीं है, वो Zn है, वो खुद से इनफाइनाइटली में नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर का एक ही होगा। जैसे Z2 भी है, Z3 भी है, तो वो भी है तो इनफाइनाइटली में नहीं। बट कैटेगरी, अगर कैटेगरी पूछा जाए, सो देयर आर जस्ट 2 कैटेगरी। इनफाइनाइट एक ही है विच इज Z, और फाइनाइट है वो जितना भी ऑर्डर होगा वो Zn के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। सो दैट इज द proof of this, means you have to complete this proof yourself. And now I'm moving ahead to another example. So एक और example I will give you, and then we'll move to the next theorem. This is next example. ये भी आप खुद ही prove करोगे, I'm just defining it. So GBSL2R. So this is special linear group of order 2 cross 2, means special linear group containing 2 cross 2 matrices. उनकी एंट्रीज रियल होंगी, ऑब्वियसली SL है, ये स्पेशल वाला है, तो इनका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा? 1 होगा। और MB, let M be any 2 by 2 real matrix विद डिटर्मिनेंट 1। तो MB बेसिकली इसी ग्रुप में से ही कोई एलिमेंट हमने उठाया है। तो फाई अगर हम डिफाइन करें फ्रॉम G to G एज फाई M डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं? किसी भी मैट्रिक्स को उसको मैप करना है इस एलिमेंट पे, MAA इनवर्स, क्योंकि इस एलिमेंट में सॉरी इस ग्रुप में सभी मैट्रिसेस हैं 2 क्रॉस 2 की, तो उनको हम ऐसे मैप कर रहे हैं। अब क्योंकि ये मैप M पे डिपेंडेंट है और M इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप G इटसेल्फ, तो ये इस तरह से ऑब्वियसली इनफाइनाइटली मेनी मैप्स बन जाएंगे कि कितनी मैट्रिसेस आप सब मैट्रिक्स के लिए डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज अ वे यू डिफाइन द मैप, एंड यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज आइसोमॉर्फिज्म। सो दिस इज ऑल्सो आई एम लीविंग टू यू, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, सॉल्व है वहां से, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बुक एंड देन प्रूव दिस वन। Okay, so moving ahead towards the next theorem. Okay, this is after the name of mathematician, British mathematician Arthur Kelly, who has actually given many important result in number theory and algebra. So this is one result. It states that every group is isomorphic to a group of permutations. So you see such a simple statement, but it is very strong result. Again, you can say it's a very big result. अब देखो कितने सारे ग्रुप्स हैं अलग अलग तरह के, हम कह रहे हैं कि हर ग्रुप जो है वो एक परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। परमुटेशन ग्रुप हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सिमेट्रिक ग्रुप जो हमने स्टडी किया है SN, so they were permutation groups. Obviously जो हमने स्टडी किया है SN वो फाइनाइट परमुटेशन ग्रुप्स हैं, उसमें n फैक्टोरियल एलिमेंट थे। बट आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि इनफाइनाइट सेट्स पे भी परमुटेशंस होती हैं, उनके ग्रुप्स नहीं हमने स्टडी किए, बट डेफिनेटली दे आल्सो फॉर्म द ग्रुप। तो ये इसलिए जो रिजल्ट है जनरल रिजल्ट है, इट्स नॉट ओनली फॉर फाइनाइट ग्रुप, इट इज फॉर एवरी ग्रुप। फाइनाइट वाला ऑब्वियसली फाइनाइट परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, इनफाइनाइट वाला इनफाइनाइट के आइसोमॉर्फिक होगा, बट प्रूफ कॉमन ही करेंगे हम, वी आर नॉट डिवाइडिंग द प्रूफ इनटू कैटेगरीज। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। Let G be any group. Okay,
अब हमें शो करना है कि ये किसी दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है और वो जो दूसरा ग्रुप है वो एक परमुटेशन ग्रुप है। अब इट्स लाइक अगेन अ थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब हमें प्रूफ तो करना है कि आइसोमॉर्फिक है, बट किसके आइसोमॉर्फिक है वो भी हमें पता है, बट वो कैसा दिखता है वो नहीं हमें पता। इट्स वी जस्ट नो कि इट्स अ परमुटेशन ग्रुप। जैसे प्रीवियस 2 एग्जांपल्स में या प्रीवियस 3 एग्जांपल्स में हमें ग्रुप्स तो पता थे ना दोनों तरफ, हमें सिर्फ मैप इंसर्ट करना था। यहाँ पे हमें एक तरफ ग्रुप पता है एंड दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ जनरल, लेट जी बी एनी ग्रुप, और दूसरी तरफ एक परमुटेशन ग्रुप है। तो पहले हम वो ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेंगे कि कौन सा ऐसा ग्रुप होगा जो परमुटेशन ग्रुप होगा और जिसके ये ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा। सो वी हैव टू काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट दैट ग्रुप, राइट? सो लेट G be any group and suppose उसका कोई हम एलिमेंट ले लेते हैं, G belongs to G be any element. ओके, तो अब हमें क्योंकि परमुटेशन ग्रुप कंस्ट्रक्ट करना है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन? कैन एनीबॉडी टेल? बेसिकली परमुटेशन क्या होता है? It is 1-1 onto mapping from G to G. Yeah, it's actually a 1-1 onto mapping from G to G. तो हमें G के ही एलिमेंट्स को परम्यूट करना है। So basically it's a function, it is a mapping. तो हमें एक मैपिंग डिसाइड करनी है इस एलिमेंट G के साथ, क्योंकि और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें इस एलिमेंट को यूज करके ही एक मैपिंग डिसाइड करनी है, डिफाइन करनी है। सो वी कैन डिफाइन अ मैपिंग। अब इसकी T यूज कर लेते हैं, आप कुछ भी नोटेशन यूज कर सकते हो। सो डिफाइन T G फ्रॉम G टू G। अब G टू G एक मैप डिफाइन होगा। अब ये डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम? वो G के एलिमेंट को G में ही रखना है। तो आप किसी बाहर वाले एलिमेंट के साथ तो उसको मल्टीप्लाई या ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट को किसी रैंडम जो ग्रुप के बाहर का कोई एलिमेंट है उसके साथ ऑपरेट करने से तो नए एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे ना। तो आपको ग्रुप के अंदर ही रखना है ताकि क्लोजर सेटिस्फाई रहे। तो ये जो G है ग्रुप का ही एलिमेंट है, और ये जो ऑब्वियसली X है वो भी आपके ग्रुप के ही एलिमेंट्स है। सो इट्स लाइक जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, से कुछ भी लिख लो, आइडेंटिटी X Y Z, कुछ भी इनफाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, तो ये ग्रुप के एलिमेंट्स है। अब मुझे दोबारा से ग्रुप पे ही जाना है बिकॉज G टू G ही जा रहे हैं, हम सिर्फ परम्यूट कर रहे हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो क्या करो, रैंडमली बीच में से एक एलिमेंट उठा लो, G ग्रुप का कोई हमने एलिमेंट उठा लिया और इस G को सबके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो G इंटू E, G into X, G into Y, G into Z. So this is what this mapping is doing. It is multiplying, it is pre-multiplying every element of the group by a particular element of the group only, which is G. अब ये हमें पता है क्योंकि क्लोजर लॉ है, क्योंकि G भी G का ही है और X Y Z ये भी G के ही हैं, तो ये ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट करके आ रहे हैं ये ग्रुप के ही एलिमेंट्स होंगे, कोई नए एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो इट इज एक्टिंग लाइक अ परमुटेशन। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप की एग्जांपल लेके समझ सकते हो, राइट? तो कोई भी ग्रुप ले लो, जैसे सपोज हमने एक ग्रुप लिया Z3 0 1 2। मैं फाइनाइट के लिए आपको समझा देती हूँ। इसका एक एलिमेंट उठा लो, सपोज 2, तो मुझे 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, और ये मॉड 3 है तो 4 मॉड 3 इज 1। तो ये क्या बना? ये सेम ग्रुप ही बन गया ना। सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन विद एवरी ग्रुप। ग्रुप के ही एलिमेंट से ऑपरेट करने से यू गेट द सेम ग्रुप ओनली, बस what you see is a change in order of the elements. That's why this is acting as a permutation. So define Tg like this. So clearly Tg is a permutation. तो वो प्रूव करने के भी आपको जरूरत नहीं है कि how it is a permutation. It's just an observation. आप एग्जाम्पल से उसको समझ सकते हो कि ये आपको फैक्ट को डाइजेस्ट करना है कि ये जो Tg है it's nothing but a permutation. ओके अब हमें एक ग्रुप कंस्ट्रक्ट करना है जो ग्रुप ऑफ परमुटेशंस हैं। तब ऐसे कितने परमुटेशंस हो सकते हैं? अब ये G जो हमने आर्बिट्ररी ग्रुप से ही एलिमेंट लिया था, अब G के अलावा आप कोई और एलिमेंट उठा लो। दिस टाइम
यहाँ से कोई और एलिमेंट उठा लो H, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो HE HX HY, तब भी सेम ही चीज रहेगी और ग्रुप ही मिलेगा। तो दैट मीन्स ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं तो आप आर्बिट्ररी एक एक करके एक उठा के यू कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट दीज। तो ये जो तरीका है ये करने का, जैसे TG है सो वो TH हो जाएगा, फिर TK हो जाएगा, जो भी है। सो ऑल ऑफ दीज आर इंडिविजुअली परमुटेशंस, और इनका जो ग्रुप होगा, इनका जो सेट होगा, so let G bar denote the set of permutations TG, G belongs to G। तो इनको मैंने अब डिफाइन कर दिया, और सारे परमुटेशंस का हमने अलग से सेट बना लिया, उसको हमने G bar बोल दिया। Then this G bar is actually a group। तो ये ग्रुप होगा, सेट तो बना लेंगे बट ये ग्रुप होगा। ग्रुप कैसे होगा? ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको ग्रुप की प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। सो वेरी क्विकली, क्लोजर। सो क्लोजर भी लाइक, अगर एक एलिमेंट TG है और दूसरा एलिमेंट TH है, तो अगर वो X पे अप्लाई हो रहा है तो THX, वो क्या है, H को आप X से लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर TG HX के ऊपर अप्लाई हो रहा है मींस G से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो दिस इज GH X, so this is nothing but TGH X, so this implies TG into TH is TGH, so वो ये itself is a permutation, means दो परम्यूटेशन को अलग अलग अप्लाई करने का मतलब है इन पहले आप एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट कर लीजिए और फिर परम्यूट कर दीजिए। सो इट्स closure is satisfied, TG into TH is also a permutation, so closure is done। identity भी होगा TE, because identity से मल्टीप्लाई करने पे सेम ही एलिमेंट आया। सो एनी मैपिंग विच फिक्सेस द एलिमेंट, वो X को X पे ही लेके जा रहा है, इट implies this TE is the identity element। and then if you talk about inverse, so हर TG का एक इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। सो ये कैसे फाइंड कर सकते हो आप, ये आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, पहले हम G इनवर्स से, G की जगह G इनवर्स ले लो, this means this G inverse into X, right? and now you take TGX, so TGX is G into X। okay, so if I put GX is Y, then X will be G inverse of Y, right? so यहां से ये हो जाएगा TG of G inverse Y is going to be Y, so and this further is going to be this, means somehow you can just elaborate it and यहाँ से ये prove हो जाएगा that this is going to happen, means जिसको और एक दो स्टेप सिंप्लीफाई करोगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि TG का इनवर्स इज सेम एज TG इनवर्स X, ये इनवर्स भी हो जाएगा। सो एसोसिएटिविटी बाय डिफॉल्ट है, तो ये ग्रुप प्रूव हो जाएगा आपका, G बार इज अ ग्रुप। तो पहला स्टेप हो गया, आपने ग्रुप को कंस्ट्रक्ट कर दिया। हमने शो करना है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, तो वो ग्रुप ऑफ परमुटेशंस कौन सा है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, दैट इज G बार। तो जब ग्रुप अब कंस्ट्रक्ट हो गया, अब आपको मैपिंग डिफाइन करनी है और उसको प्रूव करना है कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। सो यू नाउ डिफाइन फाई फ्रॉम G to G बार एज, अब ग्रुप के एलिमेंट्स तो इस तरह के ही हैं, यस, तो कहाँ पे मैप करेंगे हम इसको? Can anybody tell? How do the elements of G bar looks like? Permutation group जो आपने कंस्ट्रक्ट किया उसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं? TG. PG, right? So that's the default
वही मैं आपको पिछली 2 एग्जाम्पल से रादर ये वाली एग्जाम्पल से यही सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको जब मैप डिफाइन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, सो यू ट्राई टू जस्ट लुक एट द टाइप ऑफ द एलिमेंट्स दैट ग्रुप इज हैविंग। वहां से आपको नेचुरली एक दिख जाता है कि क्या कनेक्शन होगा। और ऑब्वियसली डोमेन और मींस जो आपकी इमेज है एलिमेंट की, इट शुड बी कनेक्टेड, लाइक यू कांट जस्ट मैप इट रैंडमली, लाइक G इज बीइंग मैप्ड टू TG ओनली, सो दैट उसका कनेक्शन बने उसके साथ। तो जितने एलिमेंट्स ग्रुप के होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट वी कैन हैव अ परमुटेशन डिफाइंड, क्योंकि वैसे ही हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो परमुटेशंस को। सो दिस इज द वे यू डिफाइन द मैप दैट phi of G is T of G. Now once you have defined the map, so it's required to check that phi is homomorphism. तो homomorphism के लिए so G was any group, तो उसमें हम default operation multiplication के लिए prove कर देते हैं। So let's take any 2 elements of G1 G2, so phi of G1 G2, yes, it will be by definition this and this will be this we have seen above, ये भी हमने prove किया था ऊपर, TG/TH is same as TGH, so this is phi of G1, this is phi of G2, क्योंकि परमुटेशन ग्रुप में तो ऑपरेशन जो है वो कॉम्पोजिशन मैप का ही होगा, कॉम्पोजिशन ऑपरेशन ही होगा। तो होमोमॉर्फिज्म हो गया 1 1 प्रूव करने के लिए। सो यू सपोज phi of G1 is same as phi of G2. What is phi of G1? TG1. तो that means अगर कोई 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो ग्रुप जनरेट हो रहा है परमुटेशन ग्रुप वो सेम है, अब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मैपिंग्स हैं, दीज आर द परमुटेशंस। सो 2 फंक्शंस के सेम होने का क्या मतलब होता है, इक्वल होने का क्या मतलब होता है कि वो जिस भी एलिमेंट पे अप्लाई होंगे सो दे विल मैप इट टू द सेम इमेज। F is equal to G implies fx is same as gx for all x, जो भी डोमेन है उसका। So if TG1 is same as TG2, it implies TG1 of x is same as TG2 of x for all x belongs to G. And in particularly, you can take x is identity, क्योंकि identity भी group का ही element है। So TG1 identity should be same as TG2 identity, and now you use the definition of TG1. तो TG1 की definition क्या है कि जिस भी element पे अप्लाई हो रहा है उससे आपने left पे multiply कर देना है। So G1 into E will be G2 into E. It implies G1 is same as G2. So this is what you wanted to prove for 1 1. Phi G1 is phi G2 has resulted to G1 is equal to G2, therefore it is 1 1. On 2 भी आप ऐसे ही देख सकते हो, on 2 में क्या होना चाहिए for every image, तो वो हमने on 2 वो है ये because हमने construct ही maps को ऐसे किया है। So for every TG belongs to G bar, we know that there exists G belongs to G such that, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया है कि ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए हमने एक TG मैप कंस्ट्रक्ट किया है, सो ये ऑन टू डिफॉल्ट हो जाएगा। सो या ऑल द 3 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, सो इट इंप्लाइज phi is isomorphism. It implies this group G is isomorphic to G bar. So that means every group, देखो इस पूरे प्रूफ में हमने फाइनाइट इनफाइनाइट कहीं नहीं यूज किया, सो प्रूफ हो गया एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। तो अगर आपको एक रैंडम क्वेश्चन आए, मैं आपको एक रैंडम ग्रुप दे दूं एंड आई आस्क यू कि इसका परमुटेशन ग्रुप फाइंड करो जिसके ये आइसोमॉर्फिक है, वो परमुटेशन ग्रुप कौन सा होगा, तो आपको ये जो प्रूफ में हमने थ्योरी डेवलप करा है, द वे यू हैव कंस्ट्रक्टेड दिस G बार, वो कंस्ट्रक्शन याद रखना है। तो यू कैन डू इट फॉर एनी एग्जांपल। एक ग्रुप है उसका आइसोमॉर्फिक ग्रुप आपको फाइंड करना है जो परमुटेशन ग्रुप होगा, सो द वे यू हैव डन द कंस्ट्रक्शन हियर शुड बी फॉलोड एंड यू कैन टेस्ट इट ऑन द एग्जांपल्स,
right? So this is Kelly's theorem, and that completes the proof for it. If anybody has any doubt in it, then please ask. Is it fine with everyone? Okay, so next, I will not start the next thing because we do have less time.